Hello students, this is Professor Samita Shinde. We will begin with today's class, chapter number 3, Issue of Shares. In the last class, we have already completed what do you mean by authorized share capital, what do you mean by your issued capital and the unclaimed capital. Now we will begin with today's session. Very warm welcome to you all. Now in this class, we are going to study with subscribe and unsubscribe capital. Now, what do you mean by subscribe capital? Subscribe capital, it is a part of what? It is a part of issued capital. You can see here, it is a part of issued capital which has been subscribed by the investor. Now, subscribe means what? Subscribe means taken up, bought, purchase. So ये purchase कौन करता है आपके shareholders. The public may or may not subscribe for the entire issued capital. Public क्या करती है? Public कभी पूरा कैपिटल भी सब्सक्राइब कर सकती है इशूड में से या पूरा नहीं भी कर सकती, बट बाय डिफॉल्ट कंपनी को मार्केट में से इशूड कैपिटल में से 90% ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल मिलना ही चाहिए. सपोज नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है तो उनको क्या करना है? वॉट एवर द कैपिटल दे आर टेकन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, they have to return them within the 8 days. If suppose they are not going to pay to their investors, so they are having, I think, 18% of interest rate. So for that purpose, they need to subscribe it. Now the whatever is part is not taken by your investors, so that part you can call it as your unsubscribed capital. In your textbook, they are given a good example of M Limited company. So you can prefer that also. So the unsubscribed capital you understood. The subscribed capital may or may not may be equal or less than to the issued capital. तो ऐसे भी हो सकता है कि कभी पूरा का पूरा इशू कैपिटल से इक्वल टू आपके सब्सक्राइब कैपिटल हो सकता है या उससे थोड़ा कम हो सकता है, बट आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 90% ऑफ कैपिटल इशू सब्सक्राइबर से करना ही होता है. नाउ वी विल बिगिन विद द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज called up, uncalled and your reserve capital. But for that purpose you need to understand what do you mean by calls. The calls mean at the time of issue, full value of the shares is usually not demanded by the company. Company collects the full value of a shares in installment as per the requirement of a funds. Each installment is called as your calls. Now for better understanding, please have a look on the next slide. So what do you mean by calls? The call is a particular demand made by the company to whom? To these shareholders that they have to pay a some part. Some part means what? Whatever the face value of your shares you are having, so this face value is divided into small portion. So this small portion or the small installments, you can call it as your calls. So there are different names for this call. Sometimes it is called as application call. Sometimes it is called, if suppose allotment के time पे लेते हैं तो allotment call, first call, second call, last call. So these are the various names for your calls. Now we will move with the previous slide. So what is given for the called up capital? Called up capital अभी किसका part होगा? It is a part of your subscribed capital. यहाँ पे कंपनी डिमांडेड टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर्स. कॉल्ड अप यानी कि कंपनी डिमांड करती है. किसको डिमांड करेगी? शेयर होल्डर्स को. क्या? कि हमने जितने का आपको कॉल बोला है उतने कॉल या उतना इंस्टॉलमेंट आपको पे करना है. दिस अमाउंट यू कैन कॉल इट एज योर कॉल्ड अप. यहाँ तक क्लियर हुआ? नाउ वी विल सी व्हाट डू मीन बाय अनकॉल्ड कैपिटल. So what do you mean by uncalled capital? The balance capital which is not demanded by the firm from the shareholders is called as your uncalled capital. Yani whatever is left over part which is not taken by your company from their investor. So this you can call it as your
uncalled up capital. यहाँ तक क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट वी विल सी द व्हाट डू मीन बाय रिजर्व कैपिटल. अभी ये जो रिजर्व कैपिटल है वो किसका पार्ट होता है? आपके अनकॉल्ड कैपिटल का. यस, तो अब ये अनकॉल्ड का पार्ट होता है, यानी आप उसमें से अनकॉल्ड में से कुछ पोर्शन साइड में रखते हो, और ये पोर्शन आप कब डिमांड करते हो? whenever your company goes for a winding up, का जब आपकी कंपनी बंद पड़ने वाली है. सो ऑन दैट टाइम कंपनी इज गोइंग टू डिमांड फ्रॉम their shareholders whatever is kept as a reserve, so they can take this reserve capital from the shareholders. So यहाँ तक सबको समझ में आया कि हमने called up capital देखा, uncalled up देखा and reserve capital देखा. उसके पहले हमने देखा है subscribe and unsubscribed capital. Now we will see the next slide. Paid up capital and calls in arrears. So paid up capital means what? Paid up capital is the total amount of money actually paid by the shareholder. पेड अप कैपिटल क्या होता है? हमने देखा है डायग्राम में कि आपके ऑथराइज कैपिटल 100 है, लेकिन आपको पेड अप कैपिटल का जो पोर्शन है वो बहुत ही कम था. इफ यू वांट टू सी यू कैन हैव अ लुक ऑन द प्रीवियस वीडियो आल्सो. So paid up capital is the total amount of money actually paid by whom? By your shareholders when the company has called up or demanded them to pay. ये क्या होता है कि कंपनी जब डिमांड करती है तब आपके शेयर होल्डर्स को पे करना है, और सपोज पेड नहीं किया तो उसको क्या कहोगे? द अमाउंट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स और द अनपेड कॉल्स. यहाँ पे आप लोग जो अनपेड sorry, the amount not paid by the shareholders is called as your calls in arrears. यानी 10 रुपया है, 10 रुपया में से आपने 6 रुपये कंपनी को पे किया है, तो रिमेनिंग कितना पोर्शन आपको पे करना है? 4 रुपीज, बट आपने पे नहीं किया. सो वॉट एवर इज लेफ्ट ओवर पार्ट यू कैन कॉल्ड इट एज योर calls in arrears. अभी ये calls in arrears होने के बाद क्या होता है? Every shareholder has to pay the calls. It is the responsibility of every subscriber or the shareholders that they have to pay to their company whatever the demands made by the company. But suppose इसमें failure हो सकता है, they won't be able to pay. On that time, company is having right to forfeit their shares. Forfeiture of the shares. यानी forfeiture यानी forfeiture of share means what? Cancellation of your shares. तो आपने 6 रुपीज तो पे किया है, that means it is loss for you. यहाँ तक पेड अप कैपिटल, कॉल्स इन एरिया सबको समझ में आया. Now we will see one more example. यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ ऑथराइज एंड पेड अप कैपिटल है. आपको ये ग्लास दिखाई दे रहा है? Yes. So this glass is your authorized capital. Authorized capital is like the container that holds the water. ये container है. It is the maximum amount of shares a company can issue. ये जो maximum capital है यहाँ तक company issue कर सकती है. To increase authorized capital, shareholders approval and payment of a requisite fee is to be required. ये जो कैपिटल है आपको बढ़ाना है, ये 1 ग्लास का आपको 1.5 करना है. On that time you need to take an approval from your respected shareholders and you have to pay the requisite fee to the government for the further procedures. Now what do you mean by paid up capital? So paid up capital it's like the water in the container. आपको ये वाटर दिखाई दे रहा है कंटेनर में, यानी कंटेनर आपका बड़ा है, that is your 100%, बट उसमें से कुछ पोर्शन है आपने पेड किया है तो ये कम है. That means this water you can call it as your paid up capital. It is the amount of shares the company has issued to its shareholder. The company has the capacity to issue more shares up to the authorized capital of the company. Suppose कंपनी ने आधे ग्लास तक पेड करके लिया है सब्सक्राइबर से, तो कंपनी के पास चांस क्या है कि कंपनी रिमेनिंग 50% जब उनको चाहिए तब मार्केट में ला सकती है. तो यहाँ तक आपको ऑथराइज एंड पेड अप कैपिटल
समझ में आया? Okay. Now, related with this, we will have a one video. Just have a overlook on it. नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बिजी स्कूल में। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। इस टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक इस टॉपिक को आज हम समझने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है कंपनी की कैपिटल शेयर्स में डिवाइड होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे कहा जाता है शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल। क्योंकि जब तक हमने 11th क्लास में पढ़ा था पार्टनरशिप वगैरह, वहाँ हम केवल कैपिटल यूज कर रहे थे, ओनली वर्ड कैपिटल। बट जैसे ही हमने कंपनी लॉ पढ़ना स्टार्ट किया वहाँ आ जाती है शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल शेयर्स में डिवाइड होती है, इसलिए वर्ड यूज लिया जाता है शेयर कैपिटल। अब हम इसे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि कैपिटल क्या होती है। देखिए, कैपिटल का सिंपल सा मतलब होता है वो पैसा जिससे कंपनी बिजनेस बढ़ाती है। ठीक है, असेस्ट खरीदना, नए प्रोजेक्ट लगाना, जिस पैसे से काम करेगी, इसी को हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, कभी आपने सोचा है कंपनी के पास इतनी कैपिटल आती कहाँ से है? मतलब कंपनी से डायरेक्टली इतनी बड़ी फर्म के अंदर कैसे बन जाती है? सर हम समझे नहीं। ठीक है, टीसीएस का नाम तो आपने सुना होगा। टीसीएस का मार्केट कैप आप देखोगे ना तो कराची स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान का जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी वैल्यू और अकेली इंडिया की टीसीएस अकेली एक कंपनी की वैल्यू ज़्यादा है। तो क्या रतन टाटा के पास स्टार्टिंग के अंदर इतनी बड़ी कैपिटल थी, उन्होंने एक साथ लगाई और टीसीएस को इतना बड़ा कर दिया? नहीं। उन्होंने ये शेयर कैपिटल कहाँ से लाई इतनी बड़ी? उन्होंने पब्लिक से ये कैपिटल ली। ठीक है, और बदले में पब्लिक को क्या दिया? शेयर दिए। मतलब रतन टाटा ने क्या किया, टीसीएस को स्टार्टिंग में इतने बड़े फॉर्म के अंदर थोड़ी लाए, पहले एक कंपनी बनाई। ठीक है, उसको अच्छा मैनेजमेंट किया, उसको आगे ले गए। बाद में रतन टाटा ने बोला अब मुझे इस कंपनी को और बड़ा करना है। ठीक है, अब मुझे और पैसा चाहिए इसमें लगाने के लिए, मतलब कैपिटल चाहिए। अब वो कैपिटल कहाँ से लाएंगे? वो पब्लिक से लेंगे। ठीक है, और पब्लिक को क्या देंगे? बदले में शेयर देंगे। ठीक है, उस शेयर का जैसे बिजनेस बढ़ेगा तो साथ ही साथ उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी, साथ में उस पर डिविडेंड और मिलेगा। तो इस टाइप से कंपनी शेयर कैपिटल जुटाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपनी की शेयर कैपिटल को कितने टाइप के अंदर डिवाइड किया जाता है। कंपनी की शेयर कैपिटल को 7 टाइप के अंदर डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑथोराइज कैपिटल, सेकंड इशू कैपिटल, थर्ड सब्सक्राइब कैपिटल, फोर्थ कॉल्ड अप कैपिटल, 5 पेड अप कैपिटल, 6 अनकॉल्ड कैपिटल, 7 रिजर्व कैपिटल। रटना नहीं है इन्हें हम एक एक को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है। देखिए, ऑथोराइज कैपिटल को 3 नामों से जाना जाता है, ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, तीनों एक ही कैपिटल होती है। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी कैन राइज इन इट्स लाइफ टाइम। दिस इज मैंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। देखिए क्या कहना चाहता है, इसे एक बार छोड़िए और मेरी लैंग्वेज में समझिए। जब कोई कंपनी बनती है तो 2 डॉक्यूमेंट बनते हैं, कौन कौन से? एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि भाई कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कहीं तो लिखनी पड़ेगी ना हमको कंपनी क्यों बना रहे हैं, किस पर्पज के लिए बना रहे हैं। तो ठीक है, तो मेमोरेंडम के अंदर लिखा जाता है कंपनी का क्या, ठीक है, कार्य क्षेत्र रहेगा, कंपनी के राइट्स क्या है, कंपनी की लिमिट्स क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी की कैपिटल क्या है। ठीक है, और ये कैपिटल कितने शेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये सारी बातें तो लिखी जाती है एमओए के अंदर। और एओए के अंदर लिखा जाता है ये जो मेमोरेंडम के अंदर जो बातें हैं इनको हम कैसे पाएंगे, मतलब कंपनी के ऑब्जेक्ट को कैसे फुलफिल करेंगे, ये बातें लिखी जाती है एओए के अंदर। अब बात आती है कि जो कंपनी बनती है ना तो एक डॉक्यूमेंट बनता है एमओए, उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो कैपिटल लिखी जाती है ना उसे हम कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल। ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल मतलब आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया एमओए, उसके अंदर जो कैपिटल लिख दी उसको ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। ये मैक्सिमम कैपिटल के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि कंपनी इससे ज़्यादा कभी इशू कर ही नहीं सकती। यार आपने खुद एक बार इसको ऐसे सोचिए, आपने कंपनी बनाई और आप बोल रहे हो कि मेरी ऑथोराइज कैपिटल 10 करोड़ है। ठीक है, तो आप 10 करोड़ से ज़्यादा इशू नहीं कर सकते। जैसे आपके पास 2,000 रुपये हैं तो आप 2,000 तक ही खर्च कर सकते हो।
या 2,000 से कम खर्च कर सकते हो, पर ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, जो ऑथोराइज कैपिटल है इसको कंपनी अपने देख लेती है अपने हिसाब से कि मुझे कितने फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत है, उस हिसाब से इसको रखती है, क्योंकि इस पर कुछ परसेंटेज फीस हमें आरओसी को देनी पड़ती है, इसलिए कंपनी फालतू में ज़्यादा ऑथोराइज कैपिटल नहीं रखती। कंपनी देख लेती है हाँ मुझे वाकई में इतनी कैपिटल की ज़रूरत है तो वो रख लेगी। ठीक है, कंपनी के बिजनेस साइज पे डिपेंड करता है ये चीज़। और ऑथोराइज कैपिटल में आप चेंज कर सकते हो स्पेशल रेजुलेशन पास करके। ठीक है, सेकंड आती है इशू कैपिटल। क्या होती है? देखिए इशू कैपिटल, दिस इज द पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल विच इज इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। क्या कहना चाहता है? ऑथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जो हम इशू कर रहे हैं टू द पब्लिक, किस लिए? सब्सक्रिप्शन के लिए, कि आप हमारी सिक्योरिटीज़ खरीदिए, इसलिए हम पब्लिक में जो इशू कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? इशूड कैपिटल। जैसे जैसे मैंने 10 करोड़ में से 8 करोड़ इशू कर दिए तो मेरी 8 करोड़ क्या हुई? इशूड कैपिटल हुई। और जो बचे हुए 2 करोड़ वन इशूड कैपिटल है। ठीक है, तो हमने इशू कितना किया? इशू हमने बता दिया, हमने 8 करोड़ इशू कर दिए, तो जो इशू किए वो 8 करोड़, वो हो गए इशूड कैपिटल। ठीक है, थर्ड कैपिटल होती है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन टेकन ऑफ बाय द पब्लिक। मतलब जैसे 8 करोड़ हमने इशू किया वो तो हो गई हमारी इशू कैपिटल, तो उस 8 करोड़ में से जितने लोगों ने खरीदने के लिए बोल दिया ना कि हमें आपके शेयर चाहिए और पैसे भेज दिए, उसको कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। जैसे 8 करोड़ में से लोगों ने बोला हम तो 7 करोड़ ही खरीदेंगे, तो 7 करोड़ क्या है वहाँ? 7 करोड़ है सब्सक्राइब कैपिटल। और अगर लोगों ने 5 करोड़ के ही शेयर खरीदे तो 5 करोड़ क्या हुई? सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब जितने लोग खरीदने के लिए आवेदन करते हैं, एप्लीकेशन लगा देते हैं, उसी को कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज़, अकॉर्डिंग टू सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, कंपनी के पास मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन तो होना चाहिए। मतलब जितना हम इशू कर रहे हैं ना लोगों में, उसका 90% लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। और अगर सर इससे कम हुआ तो 90% से, तो बेटा पब्लिक को पूरा पैसा वापस लौटाना पड़ेगा और आपका जो भी पब्लिक इशू है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ आता है कॉल्ड अप कैपिटल। इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच द शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड अप टू पे ऑन द शेयर्स अलॉटेड टू देम। A company does not necessarily require the full amount at once on the shares subscribed. It hence calls up only such portion as it needs. The balance then remaining is now as uncalled capital. देखिए क्या कहना चाहता है ये, एक बार इसे मैं अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। कंपनी जो पैसे लेती है ना पब्लिक से, वो क्या इंस्टॉलमेंट में लेती है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा 10 रुपये का शेयर है, तो हमने उसको बांट दिया 2.5 की किस्तों के अंदर, मतलब 4 किस्त के अंदर कंपनी पैसा ले रही है। एप्लीकेशन पे 2.5, अलॉटमेंट पे 2.5, फर्स्ट कॉल पे 2.5 और फाइनल कॉल पे भी 2.5। ठीक है, 10 रुपये का शेयर है, तो एप्लीकेशन की मनी तो हम दे देते हैं सब्सक्राइब पे। जब हम सब्सक्राइब करते हैं, जब भी हम बोल देते हैं देखिए हम आपके शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन की मनी आ जाती है सब्सक्राइब में। बट उसके बाद कंपनी मांगती है, अगर कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा तो अलॉटमेंट का पैसा क्या हो गया? कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, अगर कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा तो फर्स्ट कॉल कॉल्ड अप। मतलब इशू कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी हमसे मांग रही है कि भैया आपका टाइम हो गया, आप अपनी किस्त दीजिए, ठीक है, शेयर की, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, और सर जो नहीं मांगा बेटा वो अनकॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा। जो नहीं मांगा, जैसे मान लीजिए अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं मांगा, तो जो नहीं मांगा फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, वो हो जाएगा अनकॉल्ड कैपिटल। फिफ्थ आता है पेड अप कैपिटल। इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज़ एक्चुअली बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स। मतलब पहले कंपनी मांगेगी, कॉल्ड अप करेगी, ठीक है, कि सर आप अपना अलॉटमेंट का पैसा दे दीजिए। ठीक है, अब फिर आपने वो पैसा दे दिया, ठीक है, मतलब पेड अप कर दिया, तो उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। मतलब कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो हमने दे दिया, हमने किसने? शेयर होल्डर ने दे दिया, ठीक है, उसे बोलते हैं पेड अप कैपिटल। सिक्स आती है अनकॉल्ड कैपिटल। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल नॉट येट कॉल्ड अप इज नाउ अस अनकॉल्ड कैपिटल। मतलब जो सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो अभी तक कंपनी ने मांगा ही नहीं है, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट बच चुका है,
जो अभी तक कंपनी ने मांगा ही नहीं उसे क्या बोलते हैं हम, अनकॉल्ड कैपिटल। यार नाम से पता लग रहा है अनकॉल्ड कैपिटल, मतलब ऐसी कैपिटल जो अभी तक कंपनी ने मांगी ही नहीं है, तो उसे क्या बोला जाएगा, अनकॉल्ड कैपिटल। जिसे इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, कंपनी ने मांग लिया अलॉटमेंट तक, ठीक है, ओनली अलॉटमेंट तक ही कंपनी ने मांगे, तो अनकॉल्ड क्या हो गई, फर्स्ट कॉल हो गई और सेकंड कॉल हो गई, ठीक है। मतलब सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो अभी तक मांगा ही नहीं गया है उसे क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल। लास्ट आता है रिजर्व कैपिटल, जो इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। As mentioned above, the company by the special resolution may determine that a portion of the uncalled up capital shall not be called up except in the event of the winding up of the company. This part is called reserve capital. It is kept reserved for the creditors in case of the winding up of the company. देखिए क्या होता है, इसे मेरी लैंग्वेज में आप समझिए। जब कोई कंपनी पब्लिक इशू लाती है तो वो क्या कहती है कि हमारे 10 रुपये का शेयर है ना, इसके अंदर जो लास्ट के जो सेकंड कॉल है ना, 2.5 रुपये, मतलब उसको हम रिजर्व कैपिटल मान रहे हैं, ठीक है। रिजर्व कैपिटल उसको मान रहे हैं, मतलब वो रिजर्व कर दी गई है और हम आपसे वो पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर लेंगे ही नहीं, नहीं बेटा ले सकते हैं। कब ले सकते हैं, अगर कंपनी बंद होने को चली गई, मतलब कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई या लिक्विडेशन, ठीक है, तो कंपनी फिर क्या बोलेगी कि यार आपके 2.5 रुपये बाकी है, ठीक है, पर शेयर पे, वो सब चुकाइए अब, ठीक है। और वो पैसे लेके कंपनी क्या करेगी, जितनी भी अपनी लाइबिलिटीज़ है ना मार्केट में उसको ख़त्म करेगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर कंपनी जैसे मान लो कभी लिक्विडेट ही नहीं हो, तो बेटा कभी भी पैसा मांगा नहीं जाएगा, कभी भी पैसा मांगा ही नहीं जाएगा। ये है रिजर्व कैपिटल, ठीक है। क्योंकि पहले ही अपन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बोल रहे हैं कि हम ये पैसा जब ही लेंगे जब कंपनी बंद होगी, तो बीच में हम क्यों मांग रहे हो भाई, जब कंपनी बंद होगी तब मांगिया जाएगा, ठीक है। आपको एक क्विक रिवाइज। So this is your video related with the share cap classification of share capital. So I hope everyone understood for after examples and the video. All the concept might be clear to everyone. So we will end off your classification of share capital. So if you are having any doubts, you can ask me. Thank you and please subscribe my channel. Thank you.